हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का हिस्ट्री का चैप्टर यानी इतिहास का चैप्टर नंबर 8, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया बिटवीन AD 750 टू 1200, यानी इसका अर्थ यही हुआ कि 750 से लेके 1200 ईसा के मध्य, ठीक है, भारतीय जो है परिदेश कैसा था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और ये टॉपिक कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार के हो, NIOS के, CBSE के हो, चाहे UPSC के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। हर एक बच्चे के लिए सिलेबस जो रहेगा मान्य रहेगा, क्योंकि इसमें जो उनके सिलेबस के अंतर्गत ही ये सारे जो परिदृश्य आपके समक्ष रहेगा। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। तो our next important topic here, a contact with the Southeast Asia. There is a part of India between AD 750 to 1200. There is a most important time period here. There is the contact with the Southeast Asia. India were never to such as people to stay at home, and they has been to the moving out from a same time to different part of the world for a trade and other activities. As far as their Indian contact with the Southeast Asia is concerned, it appeared to be as old as 5th century BC, and Jatak and Buddhist texts belong to this period refer to the Indian visiting Asubra Nadavapa is the island of the gold. That is the most important there. Subra Nadiva is the island of the gold, and which is here identified with the Java. Such earlier contact with the Southeast Asia are confirmed by the recent archaeological is a find of pearls and ornament of the agate and the carnelian and the semi-precocious stone of India origin from the coastal sites in Thailand, Vietnam and Indonesia, etc. This find belong to as far back as the first century BC. According to the China tradition, their first kingdom in the Southeast Asia was founded in a Phoenix is a Columbia in the 4th century and aided by the Brahmins is known as the Kundania is who had come from India and had married the local princes. However, India and the Southeast Asia's contact become closer from a 5th century AD onward when to the inscriptions in the Sanskrit language and started to appearing in a many area. It is a peak during AD 800 AD to 1300 when to the many kings and the scientists with the India's name to emerge all over the Southeast Asia. There is a most important here. The Southeast contact with the largely and account of trade. Southeast Asia is rich in the cardamom and the sandals, wood and camphors and cloves, etc., which are form an important item for trade between India and the West. Initially, the India's trade is appeared to have a shuttles among their coastal, but is gradually there is shifted their network to the entire. Along with these traders is come the persist of particularly in the Buddhist and Brahmins to meet the literary requirement of India's shelter. It is thus a create a situation for the spirit of India's social and culture idea in the South
East Asia. But it's the most we have noted that India's contact did is not uproot the local culture. It was rather as a case of peacefully intermixing of Indian concept with the local culture features. And therefore, for the example, while the Sanskriti was accepted as a language of court and religious and Southern Asia, the religious language continue to be used side by side, and we find many inscriptions in a mixed Sanskrit and local language. Similarly, there is a concept of Brahmana was known as the South Asia as Asian and Brahmins were respected in the society, but social division were not great as it was in India. That is the most important. The most important empire which come to be found in the Southeast Asia in the 8th century AD was the Sailendra. Sailendra is empire. It is a compress of Java, it is Samantra is a Malaya Peninsula and the other part of the Southeast Asia region. There is a leadings, a naval power and the overcount for there is a geographically position controlled the trade between to China and India as well as the other country in the west. The Sailendra is a king where to the follower of the Buddhism. The follower is a Buddhism and had close contact with the Indian rulers. One of the kings of his empire built a monastery at the Nalanda in the 9th century. The 9th century there is most important and as is the request there is a Pala king. Devapala of Bengal granted the 5 villages for the upkeeps. Similarly, in the 11th is a century, another king was promoted by the Chol king Rajaraja I to build a Buddhist monastery at the Nagapatrams on the Tamil coastal. And the Sailendras has also built a beautiful temple dedicated to Buddha at the Buradar is a Java. Buradar is a Java and it is situated on the top of the hill logs and consists of 9 gradually seated terraces. They are most important here. Besides there Buddhism, there is a worship of the Hindu gods such as Vishnu and Shiva was also quite popular in South Asia. The temple dedicated to them has been to found at the various places. They show a distracted or trade of Indian influence and inspiration. One of the most famous temple dedicated the Vishnu is the Angkoravat, a temple built in the 12th century by the Surya Burma. And the two, there is a king of the Kambuja, is a Cambodia, and it is surrounded by the moat and the filled with there is a water. It has there is a gopurams and a gateway and a number of the galleries. There is a wall of the which are there decorated with the sculpture based on the theme drawn from the Mahabharata and Ramayana. यहाँ पर देखा जाए तो हमारे समक्ष जो है अत्यंत महत्वपूर्ण जो है पॉइंट आया है दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंध। आखिर यहाँ पर दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ संबंध कैसा था, लेकिन किस पीरियड के दौरान। ये समय अवधि जो था 750 से लेके 1200 के मध्य भारतीय जो है परिदृश्य कैसी थी। तो यहाँ पर देखा जाए तो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ इस समय काल में कैसी दशा थी। कहते हैं अगर देखा जाए दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ संबंध तो कहते हैं भारतीय प्राचीन काल से ही व्यापार तथा अन्य गतिविधियों की वजह से विश्व के तमाम हिस्सों में जो है भ्रमण जो है शील रहे हैं, यानी भ्रमणशील रहे हैं। हर क्षेत्र में तमाम क्षेत्र में देखा जाए तो भारत के व्यक्ति जो है लोग जो है हर क्षेत्र में भ्रमणशील रहे हैं, यानी वो घूमने के लिए हर समय तरपते रहते थे। जहाँ तक भारत के दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ संबंध का प्रश्न है वो ईस्वी पूर्व 5वीं शताब्दी के लगभग प्रतीत होता है। जहाँ तक तथा अन्य जो है बौद्ध साहित्य में भारतीय द्वारा स्वर्ण द्वीप की यात्रा का उल्लेख हमें मिलता है, यानी स्वर्ण द्वीप की यात्रा का हमें उल्लेख साफ शब्दों में मिलता है जिसे जावा के रूप में जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ इस संबंधों की पहचान हमें जो है नवीनतम पुरातात्विक खोजों के थाईलैंड, वियतनाम तथा इंडोनेशिया के जो है गतीय क्षेत्र से प्राप्त भारतीय मोती, गोमोत तथा अन्य बहुमूल्य रत्नों से हमें प्राप्त होती है। ये खोजें ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी तक चलती चीनी कथाओं के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम साम्राज्य की स्थापना जो फुनहान यानी कमौंडिया में प्रथम शताब्दी में जो है
जो है नंदिनी नामक ब्राह्मण ने की थी, जो भारत से आया था तथा अपने स्थानीय राजकुमारी से वहाँ विवाह भी किया था। हालांकि दक्षिणी पूर्व एशिया के साथ भारतीय व्यापारिक संबंध 5वीं शताब्दी के लगभग और प्रगाढ़ हुए, लेकिन जब संस्कृति भाषा में लिखे उल्लेख्य विभिन्न क्षेत्रों में प्रारंभ हुई तो यह अपने सर्वोच्च शिखर पर जो है 800 ईस्वी से लेके जो है 1300 ईस्वी तक रहा, जब पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय नाम के कई शासक तथा वंशों का वहाँ पर उदय हो चुका था। दक्षिण और पूर्व के संबंध मुख्यतः व्यापार पर आधारित हुआ करती थी और दक्षिण पूर्व एशिया जो है इलायची, चंदन की लकड़ी तथा लौंग में समृद्ध था, जिसे भारत तथा पश्चिम के बीच व्यापारिक संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। आरंभ में भारतीय व्यापारी वर्ग ने तटीय क्षेत्र में निवास करना आरंभ कर दिया, किंतु धीरे धीरे उन्होंने अपना सूचना तंत्र आंतरिक क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया। भारतीयों के धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुख्यतः बौद्ध ब्राह्मण पुजारी भी व्यापारी के साथ आए और इस प्रकार जो दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति सभ्यता का विस्तार हुआ। किंतु यहाँ यह स्मरणीय होगी कि भारतीय संपर्कों ने स्थानीय संस्कृति को अलग नहीं किया, यह स्थानीय विशेषताओं तथा भारतीय संस्कृति का एक मिला जुला रूप था। उदाहरण के लिए संस्कृति न्याय की भाषा के रूप में अपनाई गई, वहीं विभिन्न क्षेत्रीय भाषा भी साथ में प्रयुक्त होती रही, क्योंकि हमें संस्कृति तथा स्थानीय भाषाओं में वर्णित उल्लेख्य प्राप्त वहाँ से हुए हैं। इसी प्रकार दक्षिण पूर्वी एशिया वासियों तथा ब्राह्मणों में वर्ण व्यवस्था तो थी, किंतु समाज का वर्गीकरण भारत की तरह कठोर नहीं हुआ करती थी। यानी भारत में देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था जो थी काफ़ी कठोर थी, लेकिन दूसरे एशिया क्षेत्रों में ये बहुत कठोर नहीं थी। दक्षिण पूर्व एशिया में सर्वाधिक प्रमुख वंश जो है 8वीं शताब्दी में स्थापित हुआ, जो शैलेंद्र वंश का था। इसमें जावा, सुमात्रा तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य हिस्से थे। यह एक विकसित नौ शक्ति थे तथा अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के चलते चीन, भारत तथा पश्चिमी के अन्य देशों के व्यापार को नियंत्रित करते थे। शैलेंद्र शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते थे तथा भारतीय शासकों के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे। इसी वंश के एक शासक ने जो 9वीं शताब्दी में नालंदा में एक बौद्ध मठ का निर्माण भी करवाया था, उसके अनुरोध पर जो है बंगाल के पाल शासक देवपाल ने उसके रख रखाव के लिए 5 गांव दान में दे दिए थे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि इस वंश के एक शासक ने 9वीं शताब्दी में नालंदा में एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाया तथा उसके अनुरोध पर बंगाल के पाल शासक ने देवपाल ने उसके रख रखाव के लिए 5 गांव को ही दान कर दिया। इसी प्रकार अन्य 4 शासक जो है राजपाल प्रथम द्वारा तमिल तट पर एक बौद्ध मठ के निर्माण की अनुमति प्रदान भी की गई थी। शैलेंद्र जो है शासकों ने एक जो है भव्य जो है बौद्ध मंदिर का निर्माण जावा में जो है बोरोबुदुर में किया और यह एक पहाड़ी पर स्थित है तथा उसमें जो है 9 चबूतरे विद्यमान हैं। बौद्ध धर्म के अतिरिक्त हिंदू देवी देवता जैसे शिव, विष्णु की आराधना भी दक्षिण पूर्व एशिया में प्रचलित थी। उन्हें समर्पित कई मंदिर विभिन्न स्थानों पर पाए जा रहे हैं और पाए गए हैं। यह भारतीय प्रेरणा तथा जो प्रभाव की झलक देती है। भगवान विष्णु के समर्पित सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर अंगकोटवाट में स्थित है, जो 12वीं शताब्दी में जो कम्बोडिया के शासक सूर्यवर्मन ने दक्षिणी द्वारा बनवाया गया था और यह पानी से भरी हुई खाई से घिरा हुआ है और इसमें विशाल गोपुरम है तथा इसमें विशाल दृश्य है जिसकी भित्तियों पर रामायण महाभारत से संबंधित मूर्तियां अलंकृत किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था उस समय की स्थिति को जानने के लिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च
स्केल को तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरा जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने को सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।